Good morning, everybody. Let's continue where we stopped last class. But before that, let's recall what all we have done. We have done discovery of cathode rays and discovery of anode rays. Then we have seen radioactivity. There are three radiations that we have seen. Not in detail, we have seen radioactivity, but we have seen three different radiations emitted by various radioactive elements. And thereafter, we have seen the four model. I hope everybody has joined now. Please check whether my voice is clear now so that we can proceed further. Is my voice clear? I'm not audible. Little bit cracking. Okay. Fine. So we know since it is online lecture, it is very difficult to take surprise tests. But I came out with some idea here. I want you guys to go through a surprise test. Okay. I will flash a question paper, multiple choice question paper on your screen now. There are 10 questions. You have to answer within 10 minutes. Okay. 10 minutes given to you. 10 questions मतलब एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट. बट आपका हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपका ध्यान रखना चाहिए कि एक क्वेश्चन के पीछे आप मैक्सिमम 40 सेकंड्स स्पेंड कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट. बट इनिशियली यू वोंट गेट दैट एबिलिटी. आई एग्री विद दैट. सो इसलिए अभी आपके लिए एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट दिया जाएगा. ओके. सो या लेट्स डू दैट. So there are 10 questions. Go through that 10 questions. Pick the right answer or your thought right answer. Later we will see what happened. Click on the answer. उसके ऊपर ही क्लिक करो. उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो. वो शीट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो. राइट आंसर के ऊपर. आपको जो राइट आंसर लगता है उसको आप स्क्रीन के ऊपर ही क्लिक कर सकते हो. 4 ऑप्शन में से. You can answer on the screen itself. स्क्रीन में भी आपको दिखाई देगा. स्क्रीन में आपको समझ में आ जाएगा. तो आंसर स्क्रीन में क्लिक करना है.
Very good action. Within 4 minutes, you have submitted. That's it. But you will get 10 minutes. Within 10 minutes, you can complete this. So click on the screen itself. Okay, Prisha. Within 4 minutes, you are done. Great. Great, lovely. Questions are on the screen only. So तुम लोगों का स्क्रीन के ऊपर एक शीट आया रहेगा. वो शीट के ऊपर आपको आंसर करना है. There are 10 questions. 10 क्वेश्चन है जो आपका स्क्रीन के ऊपर आया हुआ रहेगा. उसको ही आपको क्लिक करना है. बेटा जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किया रहेगा तो शायद उनका स्क्रीन में नहीं आया रहेगा ये. So that is fine. I will share the result once everybody has submitted this. एक बार सब लोग सबमिट करने के बाद मैं शेयर करने वाला हूँ. तो जो बच्चे शायद मैं ये फ्लैश करने के बाद जिसने भी ज्वाइन किया शायद उनको वो नहीं दिखता होगा. चलेगा वैसे. दिस इज जस्ट लाइक अ सरप्राइज टेस्ट. I'm just trying whether it will work for later cases. देखते हैं कि आगे के लिए ये यूज होगा कि नहीं होगा. You have 2 more minutes. देखो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है बिकॉज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑफलाइन एग्जाम में आपको इतना मालूम नहीं पड़ता टाइम का. बट यहाँ पे क्या होगा द मोमेंट यू 10 मिनट्स हो जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाएगा. अपने आप बंद हो जाता है तो आपको उसके क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. No, Jay, Millikan oil drop experiment is not important. We are not going to see that. So I'm trying my level best. I'm shouting like anything. I don't know why voice is breaking. I checked my device also. There also volume is in full mode. I'm shouting here. Let's see how it goes. Thank you, Anmol. Thank you. I feel like nobody can understand. Yeah, maybe I don't know why it is happening. I'm shouting here. I'm trying to, increase my voice. I don't know why it is breaking.
Let's see how it goes. Maybe because of my internet connection. टेंथ क्वेश्चन में 1/3 एक्चुअली वो पावर में है. ओके वो ऐसा कुछ कैप लगाने में भूल गया मैं. वो तो पावर में है, शायद वो तुम लोग को याद रहेगा, खाली किया हमने. ओके 1/2 1/3 वो सब पावर में है. सो एक बार ये टेस्ट खत्म होने के बाद मैं चार्ट सेक्शन पब्लिक कर दूंगा. अभी मैं प्राइवेट किया बिकॉज तुम लोग आपस में डिस्कस किए तो क्या सरप्राइज टेस्ट का मतलब रहा. So that's why whenever I conduct this surprise test, I'll keep your chat section private. Yes, Nakul, you are correct. Back 12. So time is up. Okay, jaldi karo, last 20 seconds. I will stop this within 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Not done. If you want, I can share that. Now let us see. Millikan all drop method हम लोग देखेंगे इसलिए तो. So मैं अभी end करने वाला हूँ. जल्दी करो सबमिट. सबमिट नहीं करोगे तो तुम लोग का नहीं आएगा. जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन किया उनके स्क्रीन में वो फ्लैश नहीं हुआ रहेगा शायद. आई डोंट नो. मुझे भी ये नया चीज है, मुझे भी नहीं पता हाउ इट वर्क्स. आई एम स्टॉपिंग नाउ. So I'm sharing the result. Let's discuss that and then we go further. First question is about everyone. So first question is about the size of nucleus in the order. That will be in the order of femtometer or Fermi. So that means 10 raised to minus 15 meter. Okay, 10 raised to minus 15 meter. So option C is correct. Majority of you, almost 87 people have said correct answer. Okay. So what made you guys to? अच्छा और एक याद रखना ये मीटर में है. कभी कभी ऑप्शन सेंटीमीटर में लिखेंगे. सेंटीमीटर में लिखा तो आपको 10 raised to minus 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ दिखना चाहिए. याद रखना मीटर और सेंटीमीटर में फर्क है. 100 का फर्क होगा. तो 10 raised to minus 13 सेंटीमीटर लिखा रहेगा. तो then it is correct if it is in centimeter. The ratio of charge to mass would be greater for. सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा? So majority of you 40 majority क्या 48% people have said electron and equal people have said alpha particle. कैसे? आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई चार्ज टू मास रेशियो में आपको क्या करना है. यहाँ पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल. तो आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू सिंपली चेक नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ ईच पार्टिकल. आप यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के केस में देखोगे स्मॉलर द मास. जिनका मास स्मॉलर होता हो उसका E by M रेशियो ज्यादा होगा because mass is inversely connected. और out of them electron is having the smallest mass. जो इलेक्ट्रॉन का मास छोटा रहेगा तो उसका E by M रेशियो ज्यादा होगा. तो ये तो सिंपल था. और अल्फा पार्टिकल को तो सबसे बड़ा सबसे छोटा होना चाहिए because out of all that 4 options अल्फा पार्टिकल is having biggest mass. अभी मास जिसका ज्यादा है तो उसका E by M रेशियो छोटा होना चाहिए. एंड न्यूट्रॉन का केस में चार्ज तो 0 है तो वैल्यू becomes undefined. For that you can keep it as 0.
third question is about fundamental particle present in the nucleus of an atom. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मिलके क्या करता है, वो न्यूक्लियस बोलेंगे और वो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कुछ बच्चे भूला हुआ है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ प्रोटॉन। नाउ ये क्वेश्चन एज इट इज हमने डिस्कस नहीं किया, बट आपको हमेशा पेनिट्रेशन पावर के लिए यू हैव टू चेक द साइज ऑफ द पार्टिकल. If the size is bigger, size in terms of mass, if the mass is bigger, its penetration becomes difficult. Why? Because mass ज्यादा है, मतलब उसका साइज ज्यादा है. साइज ज्यादा है तो वो घुस नहीं पाएगा. घुस नहीं पाएगा. So आपको बोलना पड़ेगा ऑप्शंस है more than electron, less than electron, more than neutron, none. So न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन में तो आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन इज लिटिल हेवियर. सो न्यूट्रॉन से तो ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मास है. सो लेस देन इलेक्ट्रॉन. मेनी ऑफ यू रिटन राइट आंसर देयर. राइट आंसर इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, जैसे वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है. स्मॉलर द मास, ग्रेटर विल बी द पेनिट्रेशन पावर. रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट on the scattering of alpha particles showed the first time that atom has nucleus. Correct. Majority of it has nucleus. याद रखो, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको न्यूक्लियस के बारे में मालूम पड़ता है. प्रोटॉन का तो उससे पहले ही मालूम पड़ा था, कुछ बच्चे उसके बारे में बोलते हैं. और रुदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, रुदरफोर्ड के क्या इसमें बकेट में नहीं आएगा, भले उसका स्टूडेंट ने किया हो, बट रुदरफोर्ड का केस में आपको कभी कभी, ओके, दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर कि discoverer of proton is largely said as Goldstein because anode ray experiment जो है उसने किया. बट याद रखना, गोल्डस्टेन का एक्सपेरिमेंट में उसने डायरेक्टली प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया. He has talked about various ionized gas particles, they are called as anode rays. तो वो उसने डायरेक्टली प्रोटॉन के बारे में नहीं बोला है, बट लेटर ऑन रुदरफोर्ड ने काम किया था. रुदरफोर्ड ने वो सेम एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया था. तो नाम प्रोटॉन जो है वो रुदरफोर्ड ने दिया. ओके, नाम प्रोटॉन रुदरफोर्ड ने दिया था. बट याद रखना, रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन. रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टॉक्स अबाउट न्यूक्लियस एंड दैट द मॉडल दैट वी टॉक्ड अबाउट. सो कभी-कभी याद रखना, ऑप्शंस में डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन उसमें गोल्डस्टीन नहीं रहता है, समझो. बट रुदरफोर्ड है तो आपको रुदरफोर्ड टिक करना है. व्हाई? बिकॉज नाम प्रोटॉन का नाम रुदरफोर्ड ने दिया था, और वो कुछ और एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन का बारे में कुछ नहीं है, वो तो उससे पहले उसने नाम दिया था. तो इसलिए याद रखना, जब ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं रहता है तभी जाके आप डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन एज रुदरफोर्ड आप बता सकते हो. बट ऑप्शन में दोनों रहेंगे, रुदरफोर्ड एज वेल एज गोल्डस्टीन. वो तो रेयर है, ऐसा तो होगा ही नहीं, because nobody will make question like that because that is ambiguous. So in that case, by chance is a question आता है तो you can go for Goldstein. Okay, so recognition Goldstein को ही दिया जाएगा, but नाम प्रोटॉन करके, क्योंकि गोल्डस्टीन ने तो एनोड रेस बोला था, नाम प्रोटॉन तो रुदरफोर्ड ने दिया. So now एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ. When atoms are bombarded with alpha particles, only few in millions suffer deflection, others pass out undeflected. इसका मीनिंग क्या होगा? So majority of you said the nucleus of first was smaller. Perfectly all right. देखो यहाँ पे ऑप्शंस ऐसा बहुत ही जंबलिंग है, मतलब आपको पूरा रीड करना पड़ेगा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. Even out of that 4 options, even the first 3 options, it appears like may be correct. Okay. Like देखो, force of repulsion on the moving alpha particle is small. आपने इसके बारे में स्टडी नहीं किया, रिपल्शन अट्रैक्शन के बारे में स्टडी नहीं किया, बट ऐसा एक ऑप्शन डाला जाता है तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप. सो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट द ऑप्शंस. क्या रुदरफोर्ड का मीनिंग, मतलब रियल रीजन क्या है ये सब करने में, तो वो आपको याद रखना है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. द न्यूक्लियस ऑक्युपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम. दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ देम गॉट अनडिफ्लेक्टेड. When beryllium is bombarded with alpha particles, extremely penetrating radiations, which cannot be deflected by an electric or magnetic field, are given out. These are, okay,
ये तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, लाइटर एलिमेंट जो है बेरिलियम बोरॉन होते हैं, इनको अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करते हैं, सो वी गेट न्यूट्रॉन्स। सो अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको लगेगा क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है, आपको लगता है कि ये क्या रदरफोर्ड का बात कर रहा है, ऐसा कंफ्यूजन होगा, तो आप अल्फा रेस बीम ऑफ न्यूट्रॉन राइट बोला हुआ है, बट राइट आंसर इज बीम ऑफ न्यूट्रॉन। Experimental evidence for the existence of atoms nucleus comes from, so alpha scattering by thin metal foil, यही तो रदरफोर्ड का थियरी था। Alpha particle scattering experiment of Rutherford concluded that nucleus is made up of protons and neutrons। उसको ज्यादा बच्चे ने किया है, बट आपको याद रखना the positive charge of the atom is concentrated in a very small space। देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा, वो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में वो बोलने की जरूरत नहीं था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर करना या न्यूक्लियस का प्रेजेंस को बताना। तो याद रखना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑलवेज ओके डील्स विद न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस साइज, एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में ही वो बात करता है। तो याद रखना बाकी ऑप्शंस में कंफ्यूजन आपको लगता होगा, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर यू हैव टू सेलेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The radius of the related, yeah, so ये तो हमने लास्ट में देखा, ऐसा फॉर्मूला आपको याद रखना है, r equal to r naught into a power 1 by 3। so this is about the test, majority of you have done properly well, it is fine। so आगे ऐसे कुछ करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ। now I just check this, yeah, Anmol was talking about gold for Millikan oil drop experiment। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली डिस्कवरी करता है, डिस्कवर्स द एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज बताता है। इसमें से देखो रदरफोर्ड हैज सक्सेसफुली came to know about the charge to mass ratio of electron, that was minus 1.76 into 10 raised to, अब माइनस नहीं डाला तो भी चलेगा, 11 कूलम पर केजी। ये E by m रेशियो, उसको ना चार्ज के बारे में पता था ना मास के बारे में पता था, बट उसका रेशियो मालूम था। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से हमें चार्ज मिल जाता है, वो कैसे, देयर वाज अ सेटअप लाइक दिस, ओके, एक राउंड कंटेनर आप ले लो, सेंटर में भी एक प्लेट ऐसे सस्पेंड कर दो और बीच में एक होल, ओके, बीच में होल कर दो, एंड हियर यू जस्ट अप्लाई ऑयल, ओके, ऑयल, वो आप ऐसा उसको स्क्वीज करोगे तो उसका ऑयल ड्रॉपलेट्स बनके यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स बनके गिरने वाला है। सो ये देखो, ये दिस इज होल, एक होल है, ओके, ये एक होल है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो एरिया है, इसके अंदर, ये वॉल्यूम के अंदर, ये होल में ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे तक गिर सकता है, ओके, बाकी जगह नहीं गिरेगा। जो भी इसका साइज जो है ये होल का, बेस्ड ऑन दैट ऑयल ड्रॉपलेट्स इधर नीचे ना, ऊपर का मेटल रॉड और नीचे का मेटल प्लेट और नीचे का मेटल प्लेट को कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। सो वेयर ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, मतलब ऊपर का पूरा प्लेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकता है और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकता है। नाउ वन मोर थिंग इज, यहाँ पे एक एक्सरे मशीन लगा देंगे ताकि एक्सरे इसके अंदर बम्बार्ड हो जाए ऑयल ड्रॉप के ऊपर, वो क्यों हम देखेंगे। सो वंस यू हैव दिस सेटअप, ऑयल को स्क्वीज किया जाएगा तो उसका ड्रॉपलेट्स बन के यहाँ पे गिरेंगे, तो जो होल तक पहुंच गया तो वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल गो डाउन। तो नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी,
okay, and mass of the oil droplet. So हमें पता है नीचे का जो फोर्स है वो ग्रेविटी और इनटू मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, इसकी वजह से वो फोर्स लगता है, दिस फोर्स। अभी मैं क्या करूंगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो चार्जलेस होते हैं, दे आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उनका कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी एक्सरे में स्टार्ट करके क्या करूंगा, अच्छा अदरवाइज आई हैव दिस वीडियो, इसके एनिमेशन आप देख सकते हो, आई विल शेयर दैट। ऑडियो की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली सी दिस, ऑडियो की जरूरत नहीं। सी द सेटअप देयर, जो मेटल प्लेट्स होंगे, ऑयल को स्क्वीज करेंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट्स गिरेगा, उसमें जो होल होता है उसमें से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिरना शुरू करता है। सो जैसे ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिरना शुरू करेगा, so one by one oil will start going down. Now एक्सरे उसके ऊपर इरेडिएट करने से क्या होगा, ऑयल ड्रॉप्स आर न्यूट्रली चार्ज, मतलब उनका कोई चार्ज नहीं होगा, बट द मोमेंट यू पुट द एक्सरे ऑन देम, एक्सरे मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, हाई वेरी स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या करता है, उसको आयोनाइज करेगा, मतलब एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, बिकॉज वो बम्बार्ड करता है तो चार्ज पार्टिकल को आयोनाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। नीचे की तरफ जो फोर्स होता है दैट इज ड्यू टू मास एंड ग्रेविटी, ऊपर की तरफ, अच्छा हियर आई कैन टेल यू दैट व्हेन यू स्विच ऑन बैटरी, ऊपर के केस में ऊपर का मेटल रॉड को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, so because of that what happens, when you increase the voltage, electric field E, that will go up, okay, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और ऊपर का मेटल प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे उसके बेसिस में वो ऊपर जाना शुरू करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सो एक बीच में सस्पेंड हो जाएगा, वो सस्पेंशन के टाइम हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स अप्लाई टुवर्ड्स, ओके, इन अप डायरेक्शन is so आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करोगे, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे, तभी क्या होगा, बिकॉज ये एंटायर प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, सो इनको एक्सरे इरेडिएट करने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ऑयल ड्रॉप बीइंग स्टिकी, ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चिपक जाता है। सो नाउ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, यहाँ पे जो भी गैस पार्टिकल्स होंगे उसको एक्सरे क्या करता है, आयोनाइज करता है, आयोनाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होता है वो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चिपक जाता है, सो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चिपक जाएगा, और वो हमने एज्यूम किया है कि एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, बिकॉज दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चिपकते ही ऑयल ड्रॉप का साइन चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इफ यू अप्लाई द वोल्टेज, आप देख सकते हो ये ऑयल ड्रॉप को अभी चार्ज मिल गया, अभी ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे, जब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, सो तभी जाके मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका चार्ज कितना और जितना अप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया है उसका बेसिस में वो क्या ऊपर जाना शुरू करेगा। सो आई विल डिक्रीज द वोल्टेज टू अ लेवल where this oil drop will be stopped or suspended in between. So बीच में सस्पेंड होने जैसा मैं करूंगा।
तो अभी क्या है, ये चार्ज है और ये वोल्टेज है, और मैं वोल्टेज कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो एक टाइम पे मैं इसको सस्पेंड कर देता हूँ, उतना वोल्टेज को मैं फिक्स करता हूँ। सो दैट इज अ प्लेस वेयर फोर्स अप्लाइड अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड। सो नीचे फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, वहां पे तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरता है। और ये जो है मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप का मास कितना वो तो आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्फेरिकल शेप है, वॉल्यूम एक बार मालूम पड़ता है, डेंसिटी तो ऑयल का पता रहता है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बेसिस में आप मास ढूंढ सकते हो। सो ऑयल ड्रॉप का मास कितना, ग्रेविटी आपको 9.8 पता है ऑलरेडी, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। सो फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू, आप उसका चार्ज निकाल सकते हो। देखो क्यू करके लिखा है, वरना आप चार्ज को ई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को कंफ्यूज नहीं होने के लिए वो क्यू लिखा है। So Q is mass into gravity upon applied electric field. So इनमें से हमने क्या निकाला, चार्ज निकाला। So that was come out to be, वो कितना आया था 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया। Q Q is charge, ओके। देखो ये इलेक्ट्रॉन या ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर क्यों जाएगा, उसका चार्ज की वजह से जाएगा, और वो कितना फोर्स अप्लाई होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसका चार्ज कितना और अप्लाइड वोल्टेज कितना, उसके हिसाब से वो ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऊपर का फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है वो किसके ऊपर मैटर करता है, वो ऑयल ड्रॉप का चार्ज कितना है, उसका चार्ज कितना होगा, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना वोल्टेज उसमें अप्लाई करें। सो दिस इज हाउ चार्ज इज कैलकुलेटेड। So charge must be integral multiple of electron. Yes, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के हिसाब से वो कम ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप ये समझ लो, ये इसी को आप 1 यूनिट चार्ज बोलेंगे। ओके 1 यूनिट। तो मिनिमम लीस्ट चार्ज यू कैन अटेन इज ओनली दिस मच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ है ही नहीं। तो मिनिमम चार्ज आप जो अटेन कर सकते हो वो इतना ही होगा, याद रखो हमेशा। मिनिमम चार्ज इतना होगा, मिनिमम चार्ज मतलब अटेनेबल मिनिमम चार्ज, वरना तो चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो नॉन जीरो चार्ज जो मिनिमम अटेनेबल है वो इतना है, इसका मल्टीपल्स में जा सकता है, जैसे 3.2, मतलब 2 यूनिट्स के लिए आप देख सकते हो। तो नाउ ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, बट इट इज नॉट यूजफुल। इसका मैं वो जो क्या बोलते हैं एनिमेशन मैं शेयर करता हूँ वैसे। अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ, why X-ray is used? X-ray is used to ionize the gas particles. इसके अंदर का गैस पार्टिकल को आयोनाइज करके उनमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया, और वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट में जाके चिपक गया, बिकॉज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्टिकी। सो दे व्हाट दे डू, दे विल जस्ट इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे उनका सरफेस में। नाउ ऑयल ड्रॉप बहुत ही छोटा होगा, ऐसा नहीं कि आप बड़ा वाला ऑयल ड्रॉप समझेंगे, बहुत छोटा ऑयल ड्रॉप होगा। तो उसमें अज्यूम करेंगे हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन चिपकेगा, और उसका मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन, 2-3 इलेक्ट्रॉन मल्टीपल में भी चिपक जाता है, तो आपको चार्ज वाइज इसका मल्टीपल्स में आ जाएंगे। So let's go for the least technical charge of electron. Okay, चलो क्वार्ट्ज का बारे में बेटा याद रखो, अभी क्वार्ट्ज पे तुम लोगों को कंटेम्परेरी साइंस पता है, बट अभी वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते आप कोई भी एग्जाम में। क्वार्ट्ज के बारे में कोई भी एग्जाम में आपको आंसर नहीं करना है, बिकॉज कोई भी सिलेबस में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सब सिर्फ कंटेम्परेरी साइंस है, इट इज नॉट कम्प्लीटली प्रूव्ड। सो इसलिए क्वेश्चन क्वार्ट्ज के ऊपर नहीं आएंगे, ध्यान रखो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक्स, there are major two important drawbacks. One is exact location, yeah, exact position of the electron is not explained. So उसका एक्सपेरिमेंट आप ध्यान से देखोगे तो इट इज ऑल अबाउट
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में ही बात करता है वो, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस या वो वेयर दे आर प्रेजेंट उसके बारे में बात करता है. ओनली ही सेड दैट electron is present in extra nuclear part. Extra nuclear part में electron present है and it is revolving around the nucleus, ऐसा बोला है. But exact location electron का कहाँ पर है उसने नहीं बताया. Later on बोर मॉडल में हम लोग देखेंगे कि exact location क्या है और उससे precise quantum mechanical मॉडल में बोला जाता है. तो position of electron exactly रुदरफोर्ड ने नहीं बताया. आगे के जो मॉडल्स आएंगे वो थोड़ा क्या करते जाएंगे, उसको मॉडिफाई करते जाएंगे. So this is one of the drawbacks. Other is the stability of atom. Atom का stability के बारे में कोई explanation नहीं है. कैसे? Think of a situation. I consider nucleus of the center which is having a greatest pull for electron, and he says that inside the atom जो empty है, वहाँ पे क्या होगा? Electron revolves कर रहा है around the nucleus. He said this much. So electron ऐसा randomly revolve करते रहेगा and you don't fix the distance. इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस आप फिक्स नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि दिस इज चार्ज, देयर विल बी अ पुल फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इफ वी डोंट फिक्स द डिस्टेंस, अदरवाइज वो डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू हिट द न्यूक्लियस. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस को हिट करेगा. जब वो न्यूक्लियस को हिट करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक हो गया. व्हेन इट बिकम्स वन, that means what? There will be a blast या small blast हो जाएगा, यानी कि atom क्या हो जाएगा? Destabilize हो जाएगा. So because there will not be proton or electron now existing inside the atom, they will exist only when if they are separate from one another. When they merge together, there will be a collapse. Okay, collapsing of that atom. That means atom is unstable. So आप इसको explanation ऐसे भी दे सकते हो. समझो एक पत्थर को मैंने रस्सी से बांध लिया and I am doing like this. मैं ऐसे करते रहूंगा. So it will revolve around my hand forever. But if I rotate that, meanwhile what I do, उसका जो रस्सी है वो छोटा बड़ा करते रहूंगा. ऐसे ऐसे करूंगा और छोटा बड़ा करते रहूंगा. तभी जाके क्या होगा? Now this particular revolving stone is not stable. वो क्या होगा? सेंटर में हिट कर देगा. So मतलब मुझे हाथ में लग जाएगा. मैं उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं करूंगा तो. So इसका मतलब क्या है? Revolving material, उसका एक डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए. Then only it will revolve around the center forever. Otherwise center की तरफ एक pull आ जाएगा. That is called as centripetal force. वो pull की वजह से क्या होगा? It will sink into the center. So this is the part of electrodynamics. एक physics का part है electrodynamics करके. So according to electrodynamics, any charged particle, this happens for charged particles. Any charged particle, if it is moving around the nucleus, moving in a circular way, then if the distance from the center is not fixed, then that particular particle will hit the center or it will sink into the center because of the pull that exerted from the center. So nucleus case में तो उसका greatest power होता है. So you can think that कि ये वाला मॉडल इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट नहीं है. इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आप फिक्स नहीं करोगे, उसका अरेंजमेंट एटम के अंदर नहीं बताओगे, सो क्या होने वाला है? So वो एटम स्टेबल नहीं होगा. So write down these two important. Okay, stability of the atom is not explained. ये दोनों आपको important याद रखना है. Write it down. Electron does not have fixed orbit. So orbit वाला concept तो बोर बताया था ना बेटा, अभी रुदरफोर्ड ने तो नहीं बताया था. Yes, second drawback being modified in any model after Rutherford. So yes, ये दोनों को रेक्टिफाई करता है बोर एटॉमिक मॉडल. ये दोनों को रेक्टिफाई करता है बोर एटॉमिक मॉडल. So Bohr atomic model is the modification of Rutherford model. We are going to study about Bohr model now. Sorry, आपने लिख लिया तो मैं रख देता. ये दोनों ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करता है बोर मॉडल. So now before going to Bohr atomic model,
आपको और एक चीज समझना पड़ेगा, समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में वो बात करता है। अभी देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे and cosmic ray. So these are collectively called as electromagnetic radiation. Now क्वेश्चन आएगा क्या इतना ही है क्या? इतना सन एमिट करता है, बाकी स्टार्स का तो पता नहीं। तो देखो ये क्या तुम लोग बातें कर रहे हो, फोकस ऑन द स्टडी अदरवाइज आई विल मेक द चैट प्राइवेट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये तो मैंने जस्ट ऐसे एक्सप्लेन किया। I'll make the chart now private because you guys are talking about any random thing. So now ये इतना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, what they are made up of, you will see that. So इनको आपको बाहर करना है यही ऑर्डर में आपको बाहर करना है। And these all are emitted by sun. सन से ये पूरा रेडिएशन आता है। इससे ज्यादा रेडिएशन स्पेस में हो सकता है और दूसरा स्टार एमिट भी करता होगा, बट अपना जो सन है उसका टेम्परेचर के हिसाब से इतना सारा रेडिएशन वो एमिट करता है। नाउ इनमें से ऑलमोस्ट इतना क्या करता है, इट विल रीच द अर्थ। इतना सारे क्या करेंगे, अर्थ तक पहुंच जाएंगे। एंड एक्स-रे, गामा रेस एंड कॉस्मिक रेस डू नॉट रीच द अर्थ। अच्छा है वो नहीं पहुंचता, वरना तो हम एग्जिस्ट भी नहीं कर पाते, बिकॉज एक्स-रे, गामा रेस, कॉस्मिक रेस आर हाईली एनर्जेटिक। फॉर दैट मैटर यूवी इज आल्सो हाईली एनर्जेटिक, बट यूवी को तो ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है, ट्रैप करता है, मैक्सिमम ट्रैप करता है। मैक्सिमम मतलब 100% वो पूरा ट्रैप नहीं करेगा, मैक्सिमम हो सकता है 80% वो ट्रैप करता है, वो बाकी का 20% आ जाएगा। सो जो इक्वेटर में रहते हैं, इक्वेटर का एरिया में रहते हैं, इक्वेटर का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है वहां पे जो रहते हैं, so these people will absorb more of this UV light because सन का डायरेक्ट वहां पे हिट होगा। तो इसलिए क्या होता है, उनका जो मेलानिन होता है स्किन का वो कंप्लीटली बर्न डाउन होगा, बिकॉज यूवी इज एनर्जेटिक। इनमें से आप देख सकते हो कॉस्मिक रेस आर हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी वाइज ये ज्यादा है और एनर्जी वाइज ये लो एनर्जी है या लेस एनर्जी है। सो ये ऑर्डर है एनर्जी का, एनर्जी इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। नाउ तो ओजोन तक पहुंच जाता है, तो ओजोन विल ट्रैप द यूवी लाइट, बट मिनिमम थोड़ा कुछ ओजोन और यूवी लाइट तो पहुंच ही जाता है। इसलिए यू नो नाउअडेज यू गेट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मतलब वो एक्चुअली यूवी ट्रैप करता है, या स्क्रीन आप स्किन के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, यूवी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने नहीं देगा आपका स्किन को। तो इफ यू पुट दैट स्क्रीन, दैट सनस्क्रीन होता है, तो उसको आप पुट करोगे तो क्या होगा, यूवी लाइट व्हिच बम्बर्ड ऑन योर स्किन विल रिफ्लेक्ट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो अपना स्किन के अंदर नहीं जाएगा। सो ओके, ओजोन में वो होगा। चलो बाकी ये सब रेडिएशन है जो अर्थ का अर्थ तक पहुंच जाएगा। एंड यस दिस आर एक्सप्लेन्ड इन IJSO, बट ये तो फाउंडेशन का लेक्चर है, इसमें हमें बेसिक में थोड़ा कुछ समझना है। जो IJSO लेक्चर में थे उनके लिए ये सेम टू सेम होगा। आई कैन नॉट हेल्प नाउ। एक्सरे कैसे ऑब्टेन होता है, यहाँ पे तो मैं सन की बात कर रहा हूँ ना, सन में ऑब्टेन होगा, सन से ये एमिट होगा। बट इफ यू आस्क मी वेदर कैन वी प्रोड्यूस देम, यस वी कैन प्रोड्यूस देम। एक्सरे तक का जो भी रेडिएशन है हम लोग इनको प्रोड्यूस कर सकते हो आर्टिफिशियली। कॉस्मिक रेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाए
और गामा रेज तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट करते हैं, वो तो हमने देखा ही है। गामा रेज को एमिशन के लिए आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करो, एक्सरे तक का ये जो भी रेडिएशन है इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट द हीट ऑफ द बॉडी। ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ओके कोई भी एक ऑब्जेक्ट, वो उसको मैं हीट करना शुरू करता हूँ, ओके कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं हीट करना शुरू करता हूँ, तो वो क्या करता है, इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, अंदर मे बी लेट अस से 100 जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। वो 100 जूल में से क्या होगा, लेट अस से ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं, एक 60 जूल हो सकता है उसका अंदर बॉडीली चेंजेस में यूज होता होगा, मतलब एटम का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया हो, अलग अलग, ओके उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट, नाउ एटम मॉलिक्यूल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, मतलब वो मेल्ट होने के लिए भी यूज होता हो। बट 60 थोड़ा कुछ वो एब्जॉर्ब कर लिया, और थोड़ा कुछ क्या करता है, आउट ऑफ देम उसको वो बाहर एमिट करेगा, वो बाहर एमिट करता है। okay? ये एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब करके सम अमाउंट को वो क्या करता है, एमिट करता है। ओके, नाउ ये सम अमाउंट को एमिट कैसे कैसे कर सकता है, दो तरीके हैं, एक तो लाइट के जरिए, ओके लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो यहाँ पे विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, नहीं तो वो हीट के थ्रू वो एमिट कर सकता है। तो एब्जॉर्प्शन कोई भी तरीके में हो सकता है। आपको लगता होगा कि क्या मैं मुझे इसको हीट ही करना चाहिए, जरूरी नहीं है, हीट करने की जरूरत नहीं। इवन फ्रिक्शन, आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी भी आप सप्लाई करोगे तो चीजें हीट अप हो जाएगा। प्रेशर भी मैं अप्लाई करता हूँ तो भी क्या होगा, गैस हीट हो जाएगा। सो देयर आर मेनी सिचुएशंस जिसमें मैं एनर्जी को सप्लाई कर सकता हूँ। सो आउट ऑफ जो भी एब्जॉर्ब करता है उनका थोड़ा अमाउंट क्या करता है, वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ हीट। नाउ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा एमिट करेगा आउट ऑफ देम, दैट इज बेस्ड ऑन कितना एनर्जी वो एमिट करता है। बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट करता है तो उसका रेडिएशन का रेंज कौन सा रहेगा, इस तरफ रहेगा। बहुत ही कम एनर्जी एमिट करता रहेगा तो वो रेडिएशन का रेंज इस तरफ रहेगा। सो फॉर एग्जांपल आवर बॉडी इज आल्सो हीटेड बॉडी, मतलब टेम्परेचर अपना बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब अपना बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट को एमिट करता रहता है, ये दोनों एमिट करता रहेगा। सो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से मैं बताऊं, डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी टेम्परेचर, आवर बॉडी एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है, या कोई और ऑब्जेक्ट हो तो वो कुछ और रेडिएशन एमिट करेगा। इट इज ऑल अबाउट हाउ हीटेड दैट बॉडी इज, हाउ हीटेड दैट ऑब्जेक्ट इज। सन इज द हाईएस्ट हीटेड ऑब्जेक्ट, तो वो पूरा का पूरा रेडिएशन को एमिट करेगा। तो अपन का अपना जो हीट है, बॉडी का जो हीट है वो बहुत कम होता है, तो वो हिसाब से रेडिएशन वो क्या करता है, एमिट करेगा। सो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स, ओके व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, वो इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑर्डर आप याद रख लो। So first theory is same one, electromagnetic theory. So my voice is not clear. 100 joule is the energy absorbed by that. Okay. Now, so here what you have to do is, first one is Maxwell. Electromagnetic theory is explained by Maxwell. He says that electromagnetic radiation is made up of, electromagnetic radiation is made up of two components. Two components. One is electric field and the other is magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो कंपोनेंट्स मैंने बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म उसके साथ आ जाता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म उसके साथ आ जाएगा, एग्जैक्ट फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दे प्रोपगेट, ओके दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट प्रोपगेट
in sine wave manner, but perpendicular to each other. Sine wave manner में हो जाएंगे and perpendicular to each other. Okay. So what does that mean? If I consider this as x-axis, this as y-axis, and this as z-axis. Okay. X, Y, Z-axis में बता दूँ. Now they are made up of sine wave. Sine wave मतलब यहाँ पे starting उसका 0 होना चाहिए. Okay. Starting it will go like this. Up and down. Up and down. Okay. So ये साइन वेव का एक एग्जांपल है और ये कंपोनेंट किसका मैं समझूंगा, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं समझता हूँ. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड भी साइन वेव मैनर में जाएगा. सो ये भी साइन वेव है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. इनका बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा. 90 डिग्री का डिफरेंस होगा. आप इसको इमेजिन कर सकते हो. इफ आई कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इन xy प्लेन, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन xz प्लेन. xz प्लेन में रहेगा. शायद यू कैन ऑब्जर्व दैट 90 डिग्री डिफरेंस बिटवीन देम. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो xz प्लेन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, xy प्लेन में. They will go in the same direction. इनका डायरेक्शन यही है, एक ही डायरेक्शन, बट रिलेशन जो है उनका परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा. So Nakul, I am going to explain that to you. So draw this quickly. ये draw कर लो जल्दी. ये थियरी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बोलेंगे, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल. And he says that electromagnetic radiations are made up of two components, electric field and magnetic field. They propagate in sine manner but perpendicular to each other. देखो ये क्या है, दिस इज द लाइट सोर्स या जो भी ये रेडिएशन जहां पे एमिट हो रहा है, origin of the coordinate is actually the source of this radiation. और जैसे देखो, ये तो मैंने x डायरेक्शन में बोला, जैसे आप लाइट चालू करोगे तो लाइट तो पूरा डायरेक्शन में जाता है. सो एक डायरेक्शन में आप बात करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो एक्स एंड वाई एक्सिस, रोहन क्या बोल रहे हो बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. नाउ आई जैसे को बच्चों को कोई डाउट आ रहा है ऐसे कैसे, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बच्चों को जो एडजस्ट में नहीं, तुम लोग को तो ये इसमें डाउट ही नहीं आना चाहिए. Okay. Now, if I make that one of the sine wave, if I may, yes, x-axis क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, बिकॉज एक के लिए मैं जो एज्यूम करूंगा वो दूसरे के लिए भी चलेगा. तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, बिकॉज दे आर इन वेव फॉर्म. इसका कुछ प्रॉपर्टीज है. जो बेस लाइन से ऊपर रहता है उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, जो नीचे रहता है उसको ट्रफ बोलेंगे. ओके. नाउ ये जो हाइट जो होता है क्रेस्ट का या डेप्थ जो होता है क्रेस्ट का, ट्रफ का, they are called as amplitude, where A stands for amplitude. And there are various radiations, मतलब अलग अलग रेडिएशन का अलग तरीका हो सकता है. तो उसमें चेंजिंग फैक्टर क्या होगा, वेव नेचर में कोई चेंज नहीं, बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज
that can change. What is that? If I consider यहाँ से यहाँ तक, okay, यहाँ से यहाँ तक, if I consider 1 meter, so कितना सारा waves इसमें बनते हैं. For example, this is half wave, यहाँ तक आधा wave हुआ, उसके बाद ये another half, so this is considered to be one wave or one cycle. इसको आप एक cycle बोल सकते हो, because this is another cycle. So यहाँ पे one cycle, another cycle, third one, fourth one, fifth one, sixth one, like that. So यहाँ से यहाँ को आप एक cycle बोलो या one wave बोलो, that is fine. एक wave बोलेंगे. Now number of waves in unit length. Number of waves in unit length. Unit length मतलब one meter या 1 centimeter. So unit length, number of waves in unit length is called as wave number. Wave number बोलेंगे. Number of waves present in 1 meter length. 1 meter length में या 1 centimeter. Unit मतलब 1 समझ लो. 1 जो भी unit आप ले लो सेंटीमीटर या मीटर ले लो. 1 यूनिट लेंथ में कितना वेव्स होंगे वो उसका वेव नंबर होगा. दैट इज डिनोटेड बाय v के ऊपर एक क्या करना पड़ेगा आपको, बार साइन डालना पड़ेगा. उसको आप प्रोनाउंस करोगे नु बार करके नु बार. बार मतलब ऊपर का लाइन को बार बोलेंगे एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज नु, बट लिखोगे आप v. ओके, सो नाउ कितना है. पहले का केस में आप नु बार चेक करोगे तो 1. चलो मैं यहाँ तक का बात करता हूँ, यहाँ तक का बात करते हैं. ओके, सो देखो ये आधा है बट इसको आप काट लो, इसे तो इतना ही लिख दो. So I consider this much is 1 meter. This much is 1 meter. So यहाँ पे नु बार क्या होगा, यहाँ पे 2 waves होगा. ओके, 2 waves होगा, 2 waves per meter. ओके, 2 waves per meter मतलब यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, so 2 waves है. यहाँ पे वेव नंबर होगा 1 2 3 4 5 5. यहाँ तक की बात चल रहा है अपना. So 5 waves per meter. ओके, so ये दोनों वेव नंबर्स हुए. नाउ लेंथ भी हमें मेजर करना पड़ेगा. यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ये. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं देखूँ तो उसको भी आप एक वेव बोल सकते हो. Why? Because this distance is nowhere different than that of this distance. Because इधर से इतना इधर आ गए तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुंचे. तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम. सो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट. अभी ऐसा क्यों लिया, बिकॉज वेव नेचर आप बताओगे तो कुछ अप्स एंड डाउन्स की जरूरत पड़ेगा. आप बेस लाइन में बात नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ट्रफ इज कॉल्ड एज वेव लेंथ. ओके, मतलब एक वेव का लेंथ आप मेजर करना है तो इसको एक वेव बोलेंगे तो उसका लेंथ को हम लोग वेव लेंथ बोलेंगे. सो distance between two consecutive crests or trough is called as wavelength. And wavelength को हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा. ओके, स्मॉल लेटर लैम्डा हम लोग यूज करेंगे टू डिनोट wavelength. Remember these symbols. ओके, नाउ यही दो वेव्स का so let me just check your doubts.
What if there is half more wave in the case? So याद रखो कि मेरे डायग्राम में वो याद रखो कि हमेशा एग्जाम में आपको कंप्लीट वेव देंगे, आधा वेव कभी नहीं देंगे, डोंट वरी, आधा वेव कभी नहीं देंगे, बट कभी भी आधा वेव आता है समझो तो उसको हाफ वेवलेंथ ले सकते हो, हाफ वेवलेंथ ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, मिलिकन एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, मिलिकन एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, चाहिए मैं कितने बार बोल दिया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। EMR is an standing wave transfer। तो अभी आधा वेव तो कभी नहीं आएगा, वो याद रखो आप। अभी वो मेरा डायग्राम में आ गया बस उतना ही, वरना आधा वेव कभी नहीं आएगा, आए तो भी हाफ वेवलेंथ आप ले सकते हो एट द फर्स्ट। तो नाउ इसका आपको वेवलेंथ ढूंढना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है वो 1 मीटर है, आपको कहाँ से कहाँ का लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ का चाहिए। and if you check here there are two waves and the length is okay 1 meter। तो मैं बता दूं waves and length आपको गिवन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर करके, और 1 मीटर में आपको दो वेव्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests, और आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव का लेंथ को हम लोग वेव लेंथ बोलेंगे। सो देखो ये एक वेव का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे दो वेव्स है, सो एक वेव का लेंथ कितना होगा, सो टू वेव्स कनेक्ट टू फॉर्म 1 मीटर, वन वेव विल कनेक्ट हाउ मच, सो इसमें क्या होगा 1 into 1 1/2, सो 1/2 मीटर आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आपको ये देखो आधा वेव आना नहीं चाहिए, वो यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर में आप 5 वेव्स देख सकते हो, 5 वेव्स है। So again I will compare waves and length। So there are 5 waves in 1 meter, so we have to calculate the length of one wave। तो एक वेव का लेंथ कितना होगा, so criss cross, so 1/5 आएगा आपको, 1/5 वैल्यू आएगा, 1/5 वैल्यू, so 1/5 wave number आपको आएगा 1/5 मीटर। Now, if you look at the relation between wave number and wavelength और wave number का बीच का आप डिफरेंस देखोगे, देखो जहाँ पे आपको wavelength 1/2 आया है, वहाँ पे wave number 2 है, जहाँ पे आपको wavelength 1/5 आया है, वहाँ पे wave number 5 है। मतलब you can say wavelength is reciprocal of wave number। Okay, wavelength is reciprocal of wave number। नोट करो इसको। Yes, Jay, you are correct। जल्दी नोट कर लो, कोई डाउट राजू बोल दो। यस पल्लव, दिस इज लाइक साउंड वेव, ये वेव जो है वो साउंड वेव है, या वाटर वेव्स जो होते हैं वैसे ही है। Once it is noted, please say okay। All waves, if they are sine wave, these properties are applicable। For example, electromagnetic theory तो बताता है कि electromagnetic radiations are propagating like this, sound also propagates like this, water waves also propagate like this। Whoever have sine wave as a propagation, all will have these properties। जो wavelength का मैंने बोला, wave number का बोला, ये सब properties उनके केस में हो जाए।
नाउ लेंथ के हिसाब से आप वेव्स फाइंड करोगे, सो देन दिस इज द केस। टाइम के हिसाब से, बिकॉज ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, मतलब ये चलते रहेगा तो ये एक्स एक्सिस बढ़ते ही जाएगा। तो इसमें आपको क्या समझना है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप वेव्स देखोगे, समझते हैं कि वेव यहाँ पे शुरू हुआ एंड वो प्रोपेगेट होना शुरू किया, अभी टाइम भी तो चल रहा है, यहाँ पे पहुंचते समझो 1 सेकेंड हो गया, और डेफिनेटली ऐसे समझते कि यहाँ से पहुंचते वो 1 सेकेंड हो गया उसको, 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ वेव्स in 1 second, number of waves in 1 second is called as frequency of this radiation. ये radiation का ये wave का frequency बोलेंगे, that is represented as nu. Okay, v जैसा लिखो आप उसको, but pronounce करो nu. Okay, number of waves in 1 second, जितना waves है 1 सेकेंड में बना तो वो frequency होगा. If you check wave number was number of waves in one length, one unit length में था, 1 मीटर लेंथ में था, 1 सेंटीमीटर लेंथ में था, बट ये टाइम के हिसाब से है. ओके, सो यस नकुल, जैसे साइन वेव है वैसे कॉस वेव भी है, और टैन वेव, कॉस वेव है, कोसाइन वेव है. ओके, कोसाइन वेव का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कोसाइन वेव स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम, मतलब आप कोसाइन वेव लिखोगे तो इट इज लाइक दिस, only this much is the difference. ये है कोसाइन वेव. कोसाइन वेव में ये वाला जो है मैक्सिमम से शुरू होगा, साइन वेव में ये मिनिमम से शुरू होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो हमें यहाँ पे साइन वेव समझना. तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देखोगे 1 सेकेंड में 2 वेव्स है, तो क्या हुआ, 2 वेव्स पर सेकेंड, 2 वेव्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 5 वेव्स पर सेकेंड. So difference between wave number and frequency is the unit that you use. Okay, यहाँ पे सेकेंड के हिसाब से, वहां पे लेंथ के हिसाब से. If you look at these two examples, देखो ये तो वेव लेंथ हुआ, देखो यहाँ पे वेव नंबर फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे 5 है. जहाँ पे वेव लेंथ ज्यादा है वहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है. जहाँ पे वेव लेंथ, देखो इन दिस केस वेव लेंथ इज दिस वन, जहाँ पे वेवलेंथ कम होता है, लैम्डा कम होगा, जहाँ पे लैम्डा कम होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. यू कैन क्लियरली सी इन दीज टू एग्जांपल्स, लॉन्गर द लेंथ lesser will be the frequency, shorter the length more will be the frequency. क्योंकि ये लेंथ छोटा रहेगा तभी जाके ज्यादा वेव्स बन पाएंगे, और लेंथ बड़ा रहेगा. इफ यू गो फॉर वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसा एग्जांपल में जाओगे तो इसमें लेंथ और बढ़ गया, तो वेव्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ वेव्स कम होते जाएंगे व्हेन यू इंक्रीज द वेव लेंथ. तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो, कि फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हमने नू बोला है, विच इज इनवर्सली कनेक्टेड टू वेवलेंथ. वेवलेंथ के साथ आप कनेक्शन देखोगे, दे आर इनवर्सली कनेक्टेड. shorter the wave, now number of frequency is more, longer the wave, frequency is less. So if you remove the proportionality sign, you have to put the constant there. देखो difference between inversely connected and reciprocal you guys are knowing. मैंने आपको बताया था lambda is the reciprocal of wave number, मतलब यहाँ पे कोई constant नहीं है. डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लो तो आपको वेव लेंथ मिल जाएगा, या इसको यहाँ पे लोगे तो ये इधर चला जाएगा. सो डायरेक्ट रेसिप्रोकल मिलेगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, मतलब आप इसको ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा आप नहीं ले सकते. एक तो यूनिट का प्रॉब्लम है, ये तो लेंथ का यूनिट में है और ये सेकेंड्स का यूनिट में है, तो लेंथ का प्रॉब्लम है. तो ये डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल मत लो,
सो इट इज इनवर्सली कनेक्टेड, वो आप बोल सकते हो। वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। इफ आई टेक म्यू हियर, म्यू लैम्डा इक्वल टू सी, where c is constant of proportionality. Constant of proportionality. So for electromagnetic radiation, यानी कि for EMR, the value of C you have to take 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. For electromagnetic radiation आप क्या कर सकते हो? For electromagnetic radiation, इसका C का value आप 3 to 10 raised to 8 meter per second ले सकते हो। For sound के लिए तो आपको पता है ये C का वैल्यू हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। देखो ये सब वेव प्रॉपर्टीज है, जिनका भी वेव नेचर ऐसा हो ये सब के लिए फॉर्मूला चलेगा, वो सब के लिए फॉर्मूला चलने वाला है। सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू कैन टेक दिस। नाउ लुक एट द यूनिट, हाउ दैट मीटर पर सेकेंड केम। आप फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हुआ सेकेंड यूनिवर्स पर सेकेंड, और वेवलेंथ एक लेंथ है तो इसका यूनिट हो गया मीटर। तो मीटर पर सेकेंड हुआ, और मीटर पर सेकेंड को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, तो या स्पीड बोलेंगे। तो ये कांस्टेंट को आप वेलोसिटी ऑफ दैट रेडिएशन आल्सो कैन बी सेट। व्हाई? बिकॉज़ इफ यू लुक एट द यूनिट, you can see unit is coming out to be the unit of velocity. So that's why ये constant को आप बोल सकते हो velocity of that radiation. Sound के लिए उसका velocity होगा 330 मीटर पर सेकेंड। कोसाइन वेव मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोसाइन वेव का स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम रहता है, साइन वेव का स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहता है, बस उतना ही डिफरेंस, वरना दिखेगा सेम टू सेम। So write down the formula. तो कोई डाउट रहा तो बता दो, or else we are going to stop now. The loud voice of your teachers. So I did not get why C is expressed in meter per second. क्या बोलो? So I did not get why C is expressed in meter per second. Y C is equal to meter per second. Yes, Now sir. frequency is number of waves per second, मतलब number of waves in 1 second। देखो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ वेव्स के लिए आप कोई यूनिट नहीं होगा। बट इन 1 सेकंड मतलब इन 1 सेकंड मतलब वो पर सेकंड हो गया, मतलब 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड यूनिवर्स, सेकंड वेवलेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो सी के आपको पता है हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा, एलएचएस का यूनिट आरएचएस का होना चाहिए। हाँ, सो सर। न्यू लैम्डा मल्टीपल करने से जो यूनिट मिलेगा मीटर पर सेकंड, तो सी का भी यूनिट वही होना चाहिए। Okay, sir. Thank you. बताओ करके बताओ। ट्रांसफर सॉल्व
अभी हाँ तो आपको किस टाइम 2 o'clock. वहाँ पे I'm a school to 9 to 2 I'm a school 9 to So are we supposed to leave? Hello, sir. Sure. Oh. So you are on mute. Acha, I was explaining the stuff. Sorry, I was on mute. So what I was saying for third is, those who have no doubt they can leave now. So all this, okay, ये ग्राफ जो भी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ग्राफ है. जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, वैसे ही ये साइन फंक्शन का वेव है और कोसाइन फंक्शन का वेव है. These are actually waves. ये ग्राफ्स होते हैं. Sir, the wavelength can, frequency can be expressed in cycles per second also, right? Yes, that is for different things. So can you say that electric Of cosine and sine waves as a missed due to internet issues. Sir, and can you please explain the EF and Remember, MF graph? frequency means what? Something happening periodically. Okay, वो oscillation का भी frequency हो सकता है या cyclical भी हो सकता है. यहाँ पे cyclical नहीं होता, यहाँ पे up down होते जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे frequency अलग होगा. Frequency मतलब it's a general English word for period, something happening periodically. Okay, frequently जो भी होता रहेगा उसको हम लोग frequency बोलेंगे. बट यहाँ का केस में ऐसा होगा, सर्कुलरली घूमता रहेगा तो उसका सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ऑसिलेट होता रहेगा तो उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगा. So can you explain the EF and MF graph once? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? व्हेन इफ यू कंसीडर अ लाइट सोर्स, ओके, एक लाइट सोर्स को आप कंसीडर करोगे, फिर जो लाइट एमिट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो क्या रहेगा? दो कंपोनेंट, और वो दो कंपोनेंट का प्रोपगेशन साइन टाइप में होगा, साइन मैनर में होगा. और ये साइन मैनर मतलब ये वेव जैसा होगा, बट दे आर नॉट कलेक्टिव, मतलब उनका एक साथ चलना नहीं होता, उनका परपेंडिकुलर सिचुएशन होगा लाइक दिस. ओके, देखो आपको थ्री डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऐसा मैं समझू. सो एक रेडिएशन, तब एक कंपोनेंट जो रेडिएशन करेगा, इट गोज लाइक दिस. मतलब एक्स वाई प्लेन में आप उसको इमेजिन करो, और एक रेडिएशन जो है वो एक्स जेड में आपको समझना पड़ेगा, जिस लाइक दिस. तो यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस होगा. एक को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो और एक को मैग्नेटिक फील्ड.
अब ये फिक्स मत करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा XY प्लेन में, ऐसा कुछ नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को XZ प्लेन में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन XY प्लेन। सो ऐसा आप कर सकते हो। इफ यू वांट आई कैन शेयर वन वीडियो ऑफ दैट। So how is the magnetic field in course? How? Is magnetic field represented in those transverse waves? Yes. So So, EF and MF are transverse or longitudinal waves, if we can classify them like that. देखो मैं एक ये एनिमेशन। so can we say that electric field has more energy because also in this diagram chef shows electric field has a higher thrust than magnetic field. That is not a higher thrust. That they are on two different So, planes. That's why it seems. It is all depending on the wavelength। आप कम ज्यादा कर सकते हो based on electric field। मैंने आपको बताया था ना, heated substances will have more like radiation। Now we are going to study about the energy relation with the wavelength also। wavelength के साथ आप energy को relate करने वाले हैं। So आप बोल सकते हो कि as you change the wavelength, energy is also going to change। So depending on कितना एनर्जेटिक है और कितना वोल्टेज वाला है, उसका बेसिस में वो रेडिएशन का क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। So what kind of energy will magnetic field have? Sir, I had a doubt in the test you had taken. So, sir, that there was a question which stated the penetration power of proton is more than. So, sir, it should be more than neutron but less than electron, right? Yes, correct। So two options are correct if the question comes then. The options were that more than electron, less than electron, more than neutron, none of the above. Correct, yes। But More than how can it be more than neutron, sir? रेडिएशन। देखो मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो आप देख पा रहे, तो देखो how it goes। Yes, sir. Whatever। So E is electric field and B is magnetic field. Yes, yes। So why is magnetic field represented like that? आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या मैग्नेटिक फील्ड ले लो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने एंड में क्या बोला, सिर्फ एक वेव डाल के उसका ही मैंने वेवलेंथ और वो सब देखा हमने, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिखने में सेम दिखेंगे, एम्पलीट्यूड वाइज भी सेम दिखेंगे और वेवलेंथ वाइज भी सेम दिखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाइज भी सेम रहेगा। Sir, this MF being on XZ plane and EF being on XY plane is just plain convention, right? We can take it the other way also. Yeah. You can take it. Only Okay, sir. उनका बीच में perpendicular gap होना चाहिए, 90 degree का gap होना चाहिए। Yes, sir. So the video we just saw was, does that relate to the left-hand rule, Fleming's left-hand rule? Yes, यहाँ पे अप्लाई होगा वो, बट वो तो आप करंट के लिए यूज करो बेटा, यहाँ पे तो वैसे। तो आपका आवाज बीच में ब्रेक हो रहा, तो वापस से बोलिए ना प्लीज। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो भी होगा, दैट इज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आई एग्री विद यू, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे करंट या तीन ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो आपकी जरूरत नहीं है बेटा। Okay, sir. Thank you. And so can you tell me how is nu proportional to 1 upon lambda? What is? How is nu proportional to 1 upon lambda?
Uh, so there, what we have seen is we have just checked frequency and wavelength relation. If you compare two different radiations, there you will see if I keep the length between two crests more, then the number of waves formed in 1 second will be less. That is more logical, right? मैं दो waves का दो crest का बीच का length में बड़ा रखूंगा, तो number of waves तो कम बनेंगे. But the energy would be higher. crest का बीच का length में कम रखूंगा, तो number of waves ज्यादा बनेंगे. As a propagation वो करता रहेगा, as a function of temperature, as a function of time मैं बोल दूँ. So time तो चलते रहेगा. तो जैसे सोर्स से रेडिएशन एमिट होना शुरू करता है, तो इफ इट इज मेकिंग लॉन्गर वेवलेंथ, तो नंबर ऑफ वेव्स तो आप समझ पा रहे हो, एक ऊपर का होना चाहिए, एक नीचे का होना चाहिए, यानी एक क्रेस्ट होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, उसको एक वेव बोलेंगे. सो ये वाला वेव्स क्या होगा, बढ़ते उनका बीच का लेंथ आप बड़ा रखोगे, दो क्रेस्ट का बीच का लेंथ बड़ा रखोगे, तो नंबर ऑफ वेव्स कम बनते जाएंगे. सो दैट इज फॉर द रिलेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट. Frequency and wavelength are inversely connected. Longer the wavelength, number of waves एक सेकंड में कम बनते जाए. So can we say that gamma rays have higher crest than radio waves? Gamma rays have higher energy than radio waves. What else you said? Higher crest. Crest. You don't say in terms of crest or amplitude. Of course, amplitude will matter, but these radiations are different by their wavelength. मैं अभी बोल सकता हूँ, we are going to study about them, but मैं अभी के लिए बोल सकता हूँ कि गामा रेस का वेवलेंथ जो है वो छोटा रहता है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स बहुत बनते हैं गामा रेस के. सो वेवलेंथ वाइज रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसलिए रेडियो वेव्स को हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. वेवलेंथ ग्रेटर डिस्टेंस इट कैन ट्रैवल, बिकॉज आप याद रख लो, वेव नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बनते हैं और उसका वेवलेंथ कम होता है, तभी जाके क्या चांसेस है उसका कोई भी पार्टिकल से कोलाइड होने का चांसेस ज्यादा होता है. तो जिनका केस में वेवलेंथ बड़ा रहता है वो ज्यादातर पार्टिकल्स को पार करके जाएगा, यानी कि हिंड्रेंस या उसका प्रोपगेशन में स्टॉपेज नहीं होता. तो इसलिए रेडियो वेव्स ट्रैवल्स लॉन्गर डिस्टेंस and avoids many obstacles, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह पार करके वो जा सकता है. गामा रेस ज्यादातर obstacles पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, या उसका स्पीड क्या होगा, डिरेल हो जाएगा, उसका मूवमेंट थोड़ा डिरेल हो जाएगा, बिकॉज वेवलेंथ कम होने की वजह से. We are going to study about this. So radio waves. And so one more doubt. So for EMR, so how's EMR velocity? How EMR is? Velocity. What kind of Velocity wise, no matter which radiation you talk, velocity wise they will have constant velocity. Radio waves को लेकर cosmic rays तक सबका velocity same है. मतलब आप न्यूक्लियर रेडिएशन के केस में मैं वेवलेंथ बड़ा समझूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू सेम होना चाहिए. When I go to गामा रेस, वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखूंगा, वेवलेंथ कम रखूंगा, तो उनका मल्टीप्लिकेशन आपको सेम वैल्यू देगा. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल बी फिक्स्ड no matter which radiation you talk, only their frequency and wavelength will vary. Their product Sir. multiplication is not same. Sir, Rutherford's model also concluded that electrons revolve in discrete orbits, right? We did say that, but yes, there is an extension for Rutherford model called as planetary model. तो planetary model के हिसाब से आप बोल सकते हो कि planet का जो system है वैसे उसने बताया था, but Yes, he sir. did the mathematical support to that, the way Bohr has said. जैसे बोर ने बताया था वैसे उसने नहीं बताया था. So So, Bohr has. sir, can we say that one of the conclusion is that electrons revolve in discrete orbits of Rutherford's model? Yeah, you can say for Rutherford model, but more of you have to say electrons are Yes. extra nuclear part and they are revolving around the nucleus. In discrete orbit, if you want to say, you can say, but Bohr model में वो उसका ज़्यादा focus होता है. Okay, sir. Thank you, sir. चलो मैं स्टॉप करता हूँ.
Thank you, sir.